Okay, so welcome you all again for the second day of our photo exhibition and seminar series on the rag pickers of Delhi. Yesterday we Yeah, it's a bit disastrous. chairs are not always very comfortable, I know. So yesterday we actually had quite an interesting discussion on the living conditions and the questions of migrant laborers yesterday. Today, actually, the way we wanted to frame the discussion is around the life of a migrant worker concerning issues of labor, gender, and violence. And I'm so delighted to have Moshumi Basu from School of International Studies here with me, and also Mr. Dharmendra Kumar from the Kachra Shramik Mahasangh, and I hope that it will generate enough discussion so that we can really think about the issues at hand. So I'll give over to Moshumi Basu. Thank you. I went through Arunima's mail which came yesterday, which actually set the tone and which spoke about kal kya hua tha and how it was very informal. And today also I hope we are able to keep that spirit alive and actually talk about things which link up with this everyday struggle that women migrant workers have to face. I mean, so I'm going to be focusing on that particular issue, and my work has primarily focused on Delhi, though I haven't worked on rag pickers, but I would like to give an sort of introduction to the problems which are common to women migrants in Delhi and which are common to rag pickers working in Delhi. And the problems arise from the fact that they constitute the migrant population. The problems arise from the fact that they constitute their identity as women. So there's both, I feel, an internal contradiction within the setup which they inhabit, plus the public authorities that they have to encounter. So, but before I move on to Delhi, I'd actually like to link it up with the larger international scenario. The times that we live in, globalization, and the trends that we see, which are not just evident in the developing world, but which are also there in the developed world. And that trend is informalization. I think informalization of labor workforce is something which we have to grapple. And is it all right अगर मैं हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का उपयोग करूं? Informalization, as we understand it, is a system where the state rules cease to function. There is no regulatory power. It's a very wide open sort of space where people are finding employment, and this employment doesn't stretch 365 days. It doesn't stretch for the regular 8 hours framework of a daily wage. You have earnings spread across. There are various sorts of modes of payment that are involved, and all this is happening in the national capital. In fact, today I also had a PowerPoint, but I'd like to, which was again to do with some images of the sort of industries that are there, and what do we understand as work, what does the state understand as work, what comes within the purview of labor. So all these things are very important to the way we look at the question of migrant workers, especially women migrant workers.
Now, in developed countries, and this is what I want to highlight, this non-standard work that no longer, it's not full year employment with a single employer, you find this really increasing. So you have temporary part-time work and domestic work, which is very, very common. And the large chunk of, like if you look at Europe now, the large cut, etc., everything, the first one to be eased out of the system is the woman. Okay, and so you have, if you look at the part-time workers, a large percentage constitute women. Okay, and so this is not a trend which is simply restricted to the developing world. Apart from that, if you look at the informal employment in developing countries, you find that in Asia it's about 71%, which includes China as well, 72% in sub-Saharan Africa. So there is and 51% in Latin America. So there is over half of the regular employment or the labor market as it appears is in the informal sector. And in India, we know that standard figure to be 93 to 94% of the workforce works in the informal, which means that only 6 to 7% of the workforce is in the organized workforce. But there's a catch to it. Even the organized workforce is being informalized through contract labor. So you have greater informalization taking place in even our own very campus, where everything is contractual. Okay, so that is the larger global trend within which I situate developments which are taking place in our national capital. Now, first and foremost, when we talk of a labor market, one must keep in mind that there are structural barriers to mobility. In the sense, we would have people believe that a market is a spontaneous, where people come and go. It's a spontaneous institution where people come and go and everything works out fine. The market by itself, and that's what Hayek and other people would have us believe, that this spontaneous institution is not to be blamed for the wrongs that it does. Okay, so justice, the questions of justice, etc., they don't come within the neoliberal understanding of how the market operates. All right, but if we come out of that neoliberal discourse and we look at the market, then market is another institution which is embedded in the local society, and in the local society itself there are structural barriers to mobility, movement, etc. The market is not open. As an institution, it is not open to everybody. And there are, the barriers could be caste, class, gender, race. So the leather industry, the informal workforce in the leather industry is restricted to people of a particular caste. The construction industry restricts the entry of women. I mean, DMRC is on record in a statement which it gave to the Delhi High Court, where it stated, we don't employ women on work sites. Now, if you look outside, there are several women who are employed. So, I mean, so there are these structural barriers to the entry into. So where do women who migrate enter? What sort of jobs? It doesn't require a rocket science to, and to keep your eyes open to see that the women, the migrant women, are coming in. And I'm not talking about the IT officials, I'm talking about the large percentage of women who are migrating across states in India. They are coming into the really low-skilled jobs. Okay, domestic work, construction labor, plus some other household industries.
And this household industry is what I would like to focus upon, and to understand how the state defines what is work. I mean, we've always questioned this definition of work, where work is linked with remuneration. So what about care services? What about other sort of services which are provided? So the definition of work is very, very crucial. And when we look at it, the state and the Labour Department doesn't include household work within its purview. It excludes that. And the example that I want to really share with you is, in Delhi there is a colony called Karaval Nagar located, and I would actually urge some of you to go. I mean, one of the things which excites one is to record the mapping of the city which really has divisions. Now Karaval Nagar, आप शायद मुझे करेक्ट कर पाएंगे, करावल नगर इज द हब ऑफ माइग्रेंट्स, राइट. इधर अधिक से अधिक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि झील, शहादरा वाला एरिया. शहादरा यूज्ड टू बी द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, बट अराउंड दैट देयर आर क्लस्टर्स ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज वेयर यू हैव unorganized and workers employed in these little household industries. One such household industry is the badam, which is the almond industry. Karaval Nagar, very interesting. I mean, and how did one get interested? I was looking at multinational corporations and their trading patterns, and the badam which is given out at Diwali time and all these other, marriage season nowadays, instead of giving sweets which are made at home with all these cards which are like elaborate in themselves, you have badam and all this being given, and those badams come in from California. So sackfuls, how they arrive at Karibauli, the old spice market, and there how these sacks are then, these unshelled almonds are broken, and that whole industry which survives, which is carried down in the backyard of a particular house. So from an activity where women are very, very dominant in this trade, because earlier women would take on a sack. They would sit through the day, 2 or 3 women shell the almonds. Today, because of the remuneration and the profits which have come on, and you find that household industry has diversified. So now it has moved from the backyard to a go down, but the workers remain the same. I mean, their condition hasn't improved. A large majority are women workers, and who come in as families from Bihar, Eastern UP. They migrate. The man usually works as beldar on construction sites, but the women and the children go to the badam factories, the almond factories. Here, I'd just like to share with you, it's all very, very open. The factories are there. सब कुछ नजर आ रहा है. There are children who are this high. They are actual workers in those godowns. What is their work? They come in every morning. They are searched, and they come in every morning, and they have to stamp on the badam, the unshelled almonds. The unshelled almonds are treated with some chemicals, and these kids, they jump on it. So you will find a very strange sight of kids standing on the balcony and jumping away. Initially you think they're playing, but the point is that when it's done over an hour, you wonder what is wrong. I mean, what is happening? And it is that this is the work which the child does. After the almond is broken, the shell is broken, then the women take over. They separate the almonds as per the size and the quality, and then they
So the separation is done by them, and then they package it. So there is a very clear-cut division of labor. Now in this industry, there is no concept of a daily wage. And these are some of the myths that we should really, that people who are coming in from far off places in search of employment, they have no surety of a daily wage. Here, the logic is that they get paid by piece rate. What is the piece rate here? Not one almond, but a sack of almond. Okay? And a sack of almond takes about 3 to 4 hours. So at the end, on my PowerPoint, which I'll pass on to you, there are very interesting calculations made of how this young migrant family comes in from Bihar, and they were observed, they had worked half a day, and in that half a day there were 3 children, 1 woman, 1 husband, a wife and husband, and together at the end of around 2 o'clock they decided, the owner of the godown said, okay, khatam kaam. And they got, the man got, not the woman, the man got 50 rupees in toto, which covered the labor of 5. Now if 5 people income, which includes those 3 kids, has to be divided, then each one gets something around 10 rupees. We calculated this for the whole day and it came down to 20 rupees. A figure which, if some of you remember, Arjun Sen Gupta committee report had said that how 77% live on less than 20 rupees a day. It's really true in the sense that when we looked at the Badam workers, that is what they were earning. And this is happening right in front of the authorities, and the fact that all your other policies, be it right to education, be it lack of child labor or whatever, all these can just be ignored. And these go-downs have now, because you find Karishma Kapoor advertising Californian almonds, I'm sure you've seen that. So sales are obviously increasing. So now these industries are now going in for semi-mechanization. Semi-mechanization means the first ones to be out of that go-down structure are women, because they used to do separation work and all that. Now it's going to. Now it creates a sort of puzzle in the sense that, at least for me, I felt, okay, semi-mechanization should at least now, because they're using power, as per the official definition, if you use power and you employ more than 10 workers, you qualify as a unit. But the Labour Department has still not accepted them as a factory, as a unit, as an economic unit. So labour laws don't apply. And this is the process of informalization which is continuing and which continues to see its way through in different professions, be it rat pickers, be it... So they're extremely organized in the way they seek to exploit the migrants who are coming in. They're very, very organized. Now, let me move to another scenario, which is big business. This is a sort of fledgling business which has another big business that I'd like to focus on is the construction sector. Construction, if you look at the Gender and Migration report which came out last year, which CWDS brought out, there they quoted that how the NSSO data shows that women's participation has come down. There's a drop of 1 million. Okay? And along with that drop in the rural market, there is an increase in women's migration to the urban areas.
And one visible site which all of you must have seen is the women's participation in the construction sector. Okay. Now, ideally, construction being big business is regulated by specific labor laws. So you have a Construction and Building Workers Act which lays down certain guidelines. You also have this very an act which is hardly followed called the Interstate Migrant Workmen's Act, under which the contractor has to get a license. When the labor contractor employs people from another state and brings the workers over to a third state, the labor contractor must have a license. If you look at the Standing Committee report on 2011, December 2011, that was the last time they discussed the interstate migrant workmen, and all they discussed was making a change in the nomenclature. Okay, and there they provided data for the number of licenses that had been issued. All over India, only about 245 labor contractors had been issued licenses. Now, if you go around and look and ask for people, who's your thekedar, where is his license, neither the employer is interested in looking for this license, and the workers obviously don't know about it. So you have an arrangement which is now very much the norm, and that's why it's very difficult when you argue that, you know, the workers, their welfare should be taken, the contractor should take charge of their welfare. For example, housing, the transport, health, etc. This should be looked after. In the absence of these laws, the workers, they end up paying for all these services. Okay, and that is the irony, because the minimum wage that we have in India is the bare subsistence wage. Okay, that's not the living wage. That is not, there is a whole debate on how the worker has to be paid that much. Now, in the Badam unit, you don't have a concept of minimum wage. You see, so in the construction sector, where you do have a concept of minimum wage, again, how it's violated. Workers, and I'm stating this, that in JNU, you see all this construction which is happening, workers, you'll find them without helmets, without safety belts, without boots. Why? Why do you think that they are without? Is the universities unable to prevail over the companies that they should provide for this? One reason, yes, they are unable to prevail, but the second reason is the cost of the safety equipment is being deducted from the wages of the workers. So 300 से 400 रुपए हर महीने आपका वो हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट और जूते के लिए अगर आपके वेजेस से डिडक्ट होगा, जो कि कंपनी को देना चाहिए, तो फिर मैं क्यों लूंगा? मुझे नहीं चाहिए ये. So there are different ways. Now these workers who are here working on these two construction sites, you'll be amazed, and this is my request to the Women's Studies program, is you will be amazed at the number of women migrants who have come in. They are huge. There is a very peculiar trend. The men who come in from Malda, West Bengal, they come in as singles. They come in for the more high-skilled jobs. The Beldar, who are unskilled, they come in from Chhattisgarh, from Orissa, and other parts of UP, Madhya Pradesh. Okay, and they migrate families. So you have a whole lot of little children in this. Now, in 2011, I worked with an organization called People's Union for Democratic Rights, and PUDR was instructed by the High Court of Delhi to do inspections at construction sites. And so JNU, there was a lot of construction going on, so we did the inspection. We found
that the registers that they had had only men. So the women migrants who have been working for 8 घंटा से भी ज़्यादा, there is no concept of this 8 hours. 8 hours is not the norm anymore. It is 12 hours. So this 8-hour norm which we think is there, not only is that violated, but the fact that workers who are there on the site, their names don't figure in the official registers. So they're not workers, they're not recognized. So if anything happens to them, on site, if there is an on site accident, the company can very well say they are not our workers. Okay? Now, what happens if your name is not on the register? Not only are you not covered, but the fact is you are then paid less than what is being paid to other workers doing the same job. And this is something which is happening in JNU. Women are paid, despite the law of equal wages, equal work, they are paid less than men. Okay? They don't receive the salary themselves. That is something which, has been agitating a lot of us. They have never received salaries. Even when we've got their names on the register, there are very few women who have stood in their queue here and taken the salary. It is the husband or the father who takes the salary, who keeps it. And the husband and the father also gets less. It's not as if he's getting the minimum wage has just increased to 297. But when it was 279, workers in JNU were getting 279 for unskilled work. They were getting 140. I will pass on this film, which has been shot by JNU students, which states, and it was shot in April. So where students have recorded workers, especially women workers, where they say that we are getting 140. Okay, so these women, you talk about agency. The whole class, you're coming out of the village, you're getting exposed to the ways of the city, etc. I think one has to get that account from these women. And that is where the Women's Studies program, if you look at, and we try to do it in a very small way, we try to record the women, the sort of journeys that they had made. So it was a set of women from Bolangir. There are a lot of women here from Kalahandi. We send our students to all the KBK districts saying go and do field work there. You needn't even go there. You can just interview and write down and do your research methodology here, where you document the journeys which these women have made and what actually forced them to make this longer journey to Delhi. And so multiple, first intra-district, intra-state, and then interstate. That whole cycle of migration. But the root cause of that migration is they are migrating here for employment simply because despite having Narega and such programs, they were not getting any employment back in the villages. Majority of them were landless. Those with a little bit of land, even in the KBK districts, there's no irrigation. There are no irrigation facilities, so the land itself is, and along with all this is the mounting debt. Okay, so they find it profitable to pay the labor contractor a sum of rupees 9,000 per person to come here and work for 140 and go back. And the labor contractor, imagine the amount he makes. It's 17,000 for a couple. And he has no costs, because the housing that has been provided, it's on JNU land, but the workers pay for their electricity. Everything is deducted from the wages, which remember was the minimum wage. And the law states very clearly that all this has to be provided
by the contractor. This is part and parcel. So all I'm trying to just point towards, I mean, I could go on because there are so many issues. The very fact that, we in this country, the building and construction workers, they have a separate welfare act under which 2% of the cess of the paid by construction companies, that is put into a welfare board, and workers can access that. So maternity, I mean, the only health care that they can associate women with is maternity, which is like absurd. Anyway, but even that is not available because they do not go ahead and register workers. So there's 900 crores sitting in the Delhi Welfare Workers Welfare Board, building and construction workers, which construction workers are unable to access because of a simple registration. 2011, we got JNU to register some workers. After that, there has not been any more fresh registrations. Now, if you have a registration, whatever the limitations may be, you get certain, like scholarships. And these are all fought out, I mean, when the money was lying there, one of the first things which was easily done because of the RT and all this coming in was that construction workers, their children should be given scholarships in government schools. Okay. Now, in JNU, you must be knowing that for the last 5 years, there's a very small dedicated group of students who have been taking classes at the camp, at the and this is something which one really appreciates. Now, the fact is that everything it's all incremental, it's all voluntary. But the fact is that the law states that it shouldn't be so. If the law is clear and says that children will be given scholarships, why isn't JNU or any of our implementing agencies actually doing that? The other things are housing loans, health insurance, etc., etc. All that is also provided for. Though the health insurance has a catch. The health insurance, as we've now got for migrant workers, which includes migrant workers, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, that allows them to access private clinics. And that's where the catch lies. So you may go in, you may have a simple fever, but then the private clinic, because it is assured that it will get payment from the insurance companies, hospitalizes you, keeps you 24 hours, does a number of tests which you wouldn't want or you don't need, and then sends you a bill which is paid by the government. So the time when you actually need that, you need that insurance, you don't have it. It's 30,000 per family. Okay, which, I mean, so at every step one is facing problems. And women, if you talk to the women here, I mean, the sort of resistance because that they have to cope up with, both within the family and outside. There was a case of sexual harassment on the construction site here. There are a lot of young girls who are employed. The contractors, men, they passed some absurd, and since some of them are from the tribal areas, there is this notion that tribal girls are very free and they can be whatever, made available, whatever. Now the point is, you are exposed to this lot also. And I know that the Varma Commission now has included domestic workers, again a very sizable chunk of migrant workers, all the Jharkhand, all the things, and we know the stories which come. Now, when violations happen for this segment, where does one go? The public authorities, they're at the receiving end. I remember, the public authorities, there are innumerable cases. I don't know if you recollect, this 2010, this young girl, she delivered a baby in a park near East Patel Nagar. She was hit by the police
because she was, they were clearing up the spaces for the Commonwealth Games, and she was badly hit by a baton, and she delivered this child in the park. And later the High Court compensated and pulled up the thing. But the point is, because of the class factor, these women are on the receiving end. It's a battle where at times you will also find, these little sachets of what in the south you'd say arak, but here there are these very neat whiskey sachets which go around, and I sometimes find bottles and all near the camp. And when you probe, then you get to know that how it's a fight within the home to keep the man from spending it on alcohol. These are all facets. So, and these are stories and journeys which need to be documented. And it's through that you start challenging. The rat pickers is one such. We came across one particular case where of demolition. This was near South Extension का जो था. Southex के पास जो आपके कॉलोनी है वहाँ rat pickers were. Now the fact is there is this whole notion of them being illegal. Now we have to question, how can people residing in a country be branded illegal? There must be something wrong and warped in the way we look and identify with, population. So. I'll just stop at that, and hopefully we can have, meaningful. Hopefully some of you will join us in the construction sites to document some of these histories. Thank you, Moshe. So much. एक चीज है वो अभी जो आप 9 करोड़ का 900 करोड़, लेकिन वो डाटा अभी जो है लेटेस्ट डाटा जो है 1200 करोड़ रुपया हो गया उनके पास. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, और उसमें भी वो जो पैसा है वो बेसिकली जो है डीडीए, एनसीडी और जो मेट्रो ने दिया है वही पैसा है. जो दूसरे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसका तो पैसा ही नहीं आ रहा है, उसका शेष इकट्ठा ही नहीं हो रहा है. तो वो एक बड़ी डिमांड होनी चाहिए कि वो भी पैसा आए जो है. हाँ, पर ये जो वेलफेयर बोर्ड का ये वेलफेयर बोर्ड बना था 2002 में. ओके, फ्रॉम 2002 दे स्टार्टेड कलेक्टिंग सेस. 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड सो इट वाज आस्क्ड, व्हाट हैव यू डन विद द मनी? The money had been put away in fixed deposits. You're not here to make and earn interest. You have to disperse the money. So then they said, okay, we'll print forms. So they printed these registration forms. But let me tell you, even people sitting here in JNU, if they had to fill that form, they won't be able to fill it. It is in such difficult Hindi. It's very difficult. It asks for 500 other things. And if one of those columns is not filled, you have to go back. And let me tell you about the unions. The unions, none of the party unions have taken the cause of, it's very difficult to unionize. They have not come in. Commonwealth came and went. Now there is a very important move which the construction lobby is pushing for, and which you find mentioned in the 12th 5-year draft plan, where they're saying, please, we don't want to take on this burden of providing for provident fund for workers. This was a struggle, and this was a social security benefit which people fought for. And Montek Singh Ahluwalia has actually taken that suggestion. He has ignored that 93% people are in the informal sector. He has ignored that large percentage and has in fact taken the suggestion of the building and construction companies to allow them to be exempted. So there are all these issues which are involved. So your cess is being collected, 900 से 1200, construction का हो रहा है, तो construction cess is coming in, but why isn't it being dispersed? I think that's Let's take the questions that many. हाँ.
I think let us have Dharmendra first and then धर्मेंद्र जी, ये तो यूनियनाइजेशन का प्रॉब्लम आ ही गया है, तो नहीं, मैं अब यूनियन पे नहीं बोलूंगा। ठीक है, मतलब यूनियन पे कल भी बात हुई थी और यूनियन को लेके, मतलब मेरा नाम धर्मेंद्र है और ऑल इंडिया कचरा श्रमिक महासंघ करके एक संगठन है, और खास करके हम लोगों का संगठन जो है पूरा मेंबर बेस्ड संगठन है और उसी मेंबरशिप से वो संगठन चलता है। जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, खास करके दिल्ली शहर को जो साफ करने वाले लोग हैं, और दिल्ली में एमसीडी का अपना अनुमान है कि 9000 मैट्रिक टन कूड़ा डेली पैदा होता है। ये एमसीडी का अपना अनुमान है, एनडीएमसी का नहीं है। एनडीएमसी इससे अलग है। एनडीएमसी जो कहता है कि उसके पास 250 से 300 मैट्रिक टन कूड़ा पैदा होता है, तो अगर पूरा मिलाया जाए तो ये करीब 1200 साढ़े 1200 मैट्रिक टन कूड़ा पैदा होता है, जिसमें से कि एक कूड़े का, जो दिल्ली में कल भी बात हो रही थी, बहुत सारे साथी कल थे जो मुझे देख रहे हैं, तो जिसमें से कि दिल्ली में 3.5 लाख लोग जो वेस्ट पिकिंग का काम करने में लगे हुए हैं, और हम लोग खास करके हम लोगों के जो यूनियन है वो रोहिणी जोन और सिविल लाइन जोन में हम लोग काम करते हैं। और इसमें जो 900 मैट्रिक टन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पूरी दिल्ली में ये बात करते हैं कि खास करके जो 45% जो है, जो 900 मैट्रिक टन कूड़ा पैदा होता है, उसमें से 45% कूड़ा जो है वो ये वेस्ट पिकर जो है कलेक्ट करते हैं, और जो वो क्योंकि रिसाइकलेबल होता है, जिससे कि इनकी आजीविका चलती है, उसको ये लेके जाते हैं। और जो बाकी जो 55% कूड़ा बचता है वो ढलाव से लैंडफिल जाता है। ये मतलब हम लोगों का एक अनुमान है, और एमसीडी भी, खास करके एमसीडी अपने अपने डॉक्यूमेंट में ये मानती है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इसमें रेक्टिकर लगा हुआ है, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस कूड़े को सेग्रीगेट करने में। तो एक तो खास करके जो 45% कूड़ा ये वेस्ट पिकर कलेक्ट करते हैं, इससे जो है डेली, एमसीडी का अपना डाटा है, डेली 8 लाख रुपए, आज से 3 साल पहले का डाटा है, डेली 8 लाख रुपए सिर्फ एमसीडी का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है। ठीक है, अगर ये 45% कूड़ा भी एमसीडी को ढलाव से अगर लैंडफिल ले जाना रहे, तो 8 लाख रुपए सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा एमसीडी का। तो ये जो वेस्ट वर्कर हैं ये मुफ्त में काम करते हैं, ये एक तरह से एमसीडी का पूरी तरह से जो है 8 लाख रुपया ट्रांसपोर्ट करके बचाते हैं और कूड़े से अपनी जीविका चलाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा कि खास करके 1997 के बाद जो पूरा एक दौर जो है कूड़े में आया, खास करके निजीकरण का दौर, जैसे अलग सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे निजीकरण आया, लेकिन इसमें भी जो 1997 में खास करके दिल्ली में जो 12 जोन है, उसमें से 8 जोन जो है निजी कंपनियों को दे दिए गए। उसमें हम लोग जिस जोन में काम करते हैं, रोहिणी और सिविल लाइन जोन, वो भी था, द्वारका था, पप्पन कला था, बसंत कुंज था, और ये करोल बाग जोन था। उसमें से खास करके जो यमुना पार के जोन थे वो नहीं दिए गए, वो एक जोन, और बाद में करोल बाग का जोन जो था वो पहले एक निजी कंपनी को दिया गया था, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये कुछ अभी जो है 4 जोन बचे हुए हैं, और एनडीएमसी दिल्ली का सबसे पहला जो है जोन था, जिसको कि जोन क्या, एनडीएमसी अपने आप में ही एक बॉडी है। वो जैसे म्यूनसिपैलिटी एमसीडी एक बॉडी है, उसी तरह से दिल्ली में 3 बॉडी हैं, एक तो एमसीडी है, एनडीएमसी है, और ये छावनी बोर्ड, कंट्रोलमेंट का एरिया जो है, वो 3 इस तरह के बोर्ड हैं। तो एनडीएमसी जो है पहला ऐसा जोन था, पहला ऐसा बॉडी थी जिसको कि सरकार ने निजीकरण कर दिया था। उसी के आधार पे, उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे रोहिणी के सारे जोन जो है निजी कंपनियों को दे दिए गए, और खास करके अभी की तारीख में, आज की डेट में 8 जोन जो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। और हम लोग काफी लंबे समय से 1997 से जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो निजी कंपनियों को दिया गया है, उससे पूरी तरह से जो इनका लाइवलीहुड था वो एक तरह से छिन रहा है। क्योंकि 1957-58 में जो म्यूनसिपैलिटी एक्ट बना था, उस म्यूनसिपैलिटी एक्ट के तहत ये प्रावधान था कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने कूड़े को अपने घर में रखेगा और उसको ढलाव घर तक ले जाएगा। लेकिन जो है 1997 में इस कानून का पूरी तरह से वायलेशन हुआ है कि
जब म्यूनसिपैलिटी ने साइन किया एग्रीमेंट, कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, वो एग्रीमेंट नेट पे भी पड़ा हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें, दिल्ली MSW सॉल्यूशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी की साइट पे पड़ा हुआ है, और अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको मेल भी कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में पूरी तरह से ये वायलेशन किया गया है कि ये कंपनियां डोर टू डोर करेंगी और इसको लैंडफिल ढलाव पे ले जाएंगी, ढलाव से ये सेग्रीगेट करेंगी और सेग्रीगेट करने के बाद लैंडफिल पे ले जाएंगी। जो है लैंडफिल के बीच में उन्होंने एक रास्ता और निकाला है जो कि बहुत खतरनाक रास्ता है। उन्होंने बवान, जो हमारा इलाका है खास करके रोहिणी और सिविल लाइन जोन का, वो नरेला और बवाना में एक इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पे एक वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट बन रहा है। उसको खास करके इन्होंने अभी जो है 5 एकड़ जमीन जो है दी है, जहां पे इन्होंने कहा है कि वहां ये सेग्रीगेट करेंगे, और सेग्रीगेट करने के बाद जो खास करके कूड़ा जो जिससे कि ये वेस्ट वर्कर अपना लाइवलीहुड चलाते थे, उस कूड़े को वो कंपनियां सेग्रीगेट करेंगी और कंपनियां सेग्रीगेट करके उसको बेचेंगी, और वो कंपनियों की मोनोपोली होगी कि उसको कैसे बेचेंगी। जैसे अभी की डेट में एक उदाहरण के तौर पे ये पानी की बोतल है जो ये रिसाइकिल होती है, इसमें रिलायंस का अपना एक छत्रराज है। रिलायंस इसके रेट तय करता है कि इसका कितना रेट होगा, कितना क्या होगा, और इस पूरी मार्केट जो है इसको रिलायंस चलाता है। उसी तरह से ये पूरी तरह से ये म्यूनसिपैलिटी जो है, ये एक तरह से कंपनियां ये तय करना चाहती हैं कि कागज का क्या रेट होगा, गत्ते का क्या रेट होगा, पॉलिथीन का क्या रेट होगा, वो पूरी तरह से इसको काबू करना चाहती हैं। और वेस्ट स्पीकर जो है इस पूरे खेल से जो है बाहर है, उनको मतलब कहीं पे भी इसमें हिस्सेदारी नहीं है। तो हम लोगों का ये भी सवाल है कि मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो हम निजीकरण को पूरी तरह से पूरा विरोध करते हैं कि ये निजीकरण एक तरह से बंद होना चाहिए, और खास करके जो ये लोग कर रहे थे इनको कैसे सरकार, क्योंकि 2-3 तरह की व्यवस्था चलती थी पहले भी, कि एक तो जो MCD के सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी ये ड्यूटी नहीं होती थी कि वो किसी के घर से कूड़ा उठाएं, उनकी ड्यूटी सिर्फ या तो नाली साफ करने की होती थी या झाड़ू लगाने की होती थी, और वो भी ऑन रोड, आपके सोसाइटी में कोई एम्प्लॉय नहीं होगा। तो वो लोग एक व्यवस्था कायम करते थे कि वो लोग जाके सोसाइटी से बंधा हुआ होता था, उसमें अभी भी वो व्यवस्था चलती है। तो सोसाइटी जैसे एक सिस्टम, आप अखबार जो लोग न्यूज़पेपर वाला देखते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए पूरी कॉलोनियां बिकती हैं, तो उसी तरह से इनका भी जो है पूरा एक ठेका होता था कि ये वेस्ट स्पीकर जो है 5,000 रुपये एक किसी भी वाल्मीकि समुदाय के आदमी को 5,000 रुपये देगा और पूरी सोसाइटी वो ले लेगा और उसमें से वो कूड़ा उठाएगा। लेकिन निजी कंपनियों के आने के बाद अब सीधे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है निजी कंपनी को, वो सोसाइटी के अंदर वेस्ट स्पीकर को नहीं घुसने देती है। ये बहुत लंबे समय से अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय का भी उसमें हित है कि वेस्ट स्पीकर घुसे, क्योंकि उसको भी जो है 5,000 रुपये, उनको भी 5,000 रुपये चाहिए इस वेस्ट स्पीकर से। लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, और कंपनियों ने बीच में इसको देखने के लिए खास करके कि जो है बाउंसर और इस तरह के लोगों को अपॉइंटमेंट किया था कि किस तरह से इसको रोका जाए, लेकिन पूरी तरह से अभी वो रुका नहीं है। इसमें अभी भी 50% वेस्ट स्पीकर जो है सोसाइटी में जा रहे हैं, जो कूड़ा लेके और कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा कि जो मैं बता रहा था वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भी जो कह रहे थे कि ये वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट इसलिए भी लगा रहे हैं हम लोग, एक तो ये जो कह रहे हैं कि हम कूड़ा जितना बचेगा, जितना हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे कंपनियां, और जितना बचेगा उसमें खास करके उन्होंने 3-4 आइटम जो कि कहा है कि ये जलेगा नहीं। पीवीसी के बारे में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की गाइडलाइन है उसने खास करके कहा है कि ये पीवीसी को नहीं जलाया जाएगा, इससे बहुत एनवायरमेंट पर खतरा होगा। लेकिन अब आज की डेट में सबसे ज्यादा जो ओखला का प्लांट है सुखदेव विहार का, अगर आप कोई विजिट करके देख सकता है तो सबसे ज्यादा जो है पीवीसी उसी प्लांट में जल रहा है, ठीक है। और उसका एक रिपोर्ट अभी लेटेस्ट एक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हिंदू ने कवर किया है, जिसमें कि अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बहुत सारे इंटरव्यू हैं और जिन्होंने बताया कि किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है वहां पे। और उस इलाके में अभी हम लोगों ने मतलब 15 दिन पहले हम लोग गए थे खास करके कि ये स्टडी करने के लिए कि वहां के जो वेस्ट स्पीकर्स थे उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि खास करके कि जो कूड़ा आ रहा है वो अभी सबसे बड़ा कूड़े का सप्लायर जो है ओखला प्लांट को एनडीएमसी कर रहा है, और वो कंपनी जो जिंदल की है वो भी कंपनी जो है कूड़ा खरीद रही है। मतलब एक दूसरी कंपनी एनडीएमसी में रैमकी कंपनी है और जिंदल का प्लांट है, रैमकी से कूड़ा जो है ये खरीद रहे हैं। और पूरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह से कहा जाए मतलब
अगर उसका इकोनॉमी देखा जाए तो वो एक तरह से पूरा करप्शन पे बेस्ड है, क्योंकि हमने 2007 में जब ये निजीकरण हो रहा था और 2009 में हम लोगों ने एमसीडी कमिश्नर को ये कहा था कि ये पूरा जो है 1490 रुपए पर टन ये जो कंपनी है वो कूड़ा उठाने का लेती है। आपके सोसाइटी में आएगी वो गाड़ी घंटी बजाते हुए, अगर उसका 1 टन कूड़ा हो जाएगा तो वो 1490 रुपए एमसीडी से चार्ज करेगी। और जो हमारे वेस्ट स्पीकर्स हैं वो फ्री में उठा के ले जाते थे, लेकिन उनको किसी तरह का पैसा नहीं मिलता था और सरकार ने उनकी रोजी पे भी एक तरह से खतरा हो गया है। तो ये 1490 रुपए जो पे कर रहे हैं, ये पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो मतलब इसका कहीं लॉजिक नहीं है 1490 रुपए पे करने का, क्योंकि हमने सरकार को ये सुझाव दिया था कि आप हमें 1490 में 490 रुपए दे दीजिए और एक वार्ड दीजिए। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आपको एक्सपेरिमेंट करके ये बताना चाहते हैं कि ये वेस्ट वर्कर जो हैं इनके लाइवलीहुड को भी इंक्रीज करेंगे, इनको सोशल सिक्योरिटी भी देंगे आप इसी 490 रुपए में, और हम अल्टरनेट भी देके बताएंगे। अल्टरनेट ये है कि खास करके जो आप ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कह रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी के साथ इन्होंने कंपोस्टिंग भी लिंक किया हुआ है। तो वो एक बड़ा मामला है कि ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और वो कंपोस्टिंग के प्लांट इनके ऑलरेडी, अगर आप कभी बाईपास की तरफ गए हो भलसवा की तरफ, एक पहाड़ सा बना हुआ है और वहां पे जो है एक कंपोस्टिंग प्लांट लगा था। वो कंपोस्टिंग प्लांट आज की डेट में बंद हो गया है। ठीक है, तो वो ये जो कह रहे हैं, हमने इनको कहा था कि आप जिस तरह की कंपोस्टिंग करना चाहते हैं बहुत, क्योंकि ये वर्कर जो हैं जो डोर टू डोर कर रहे हैं, आप इनको सोसाइटी में जगह दीजिए, छोटे छोटे पिट बनेगी, आपका जो कूड़ा है जितना ये रिसाइकल करना है उतना तो ले जाएंगे। आप यहाँ पे आप जो जीरो वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ये जीरो वेस्ट करेंगे आपको। आप मुश्किल से 5% जो है वेस्ट ऐसा होगा जिसको कि आप रिसाइकल नहीं कर सकते या जो है कंपोस्ट नहीं कर सकते, वो आप उसको डंप करना पड़ेगा। आपका ट्रांसपोर्ट का भी पैसा बचेगा, आपका जो है इसका जितना अवॉइड कर रहे हैं इसका भी पैसा बचेगा, और जो निजी कंपनियों को आप पैसा दे रहे हैं वो भी बचेगा। लेकिन ये पूरी तरह से उस समय जो है राकेश मेहता जी कमिश्नर थे, उन्होंने पूरी तरह से इसको नकार दिया था कि ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। और खास करके कि जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, ये सारे लोग बंगाल के हैं, मतलब 80% बंगाल के लोग हैं, मुस्लिम भाषी लोग हैं। एक तो ये कल भी आइडेंटिटी का जो सवाल, उनकी आइडेंटिटी का सवाल है, उनके उसका उस वाले सवाल में बहुत सारा आ ही गया, तो इसलिए जो है मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो एक वो वाला सवाल है, और खास करके पुलिस जिस तरह से परेशान करती है वो एक सवाल है। तो अगर कुछ और होगा तो वो डिस्कशन में जो Can I just add? ये जो प्लान्स लगाए जा रहे हैं, इसमें यूएन और वर्ल्ड बैंक has called them green projects. Okay, and in fact, I would urge you to see a similar experiment which was done in South Africa, and there's a documentary made by women journalists on this. It's called Green Gold, and it's 26 minutes long. Same cheese of how these carbon emissions carbon trading के नाम पे dump sites were created, and the most appalling fact is the location of the dump sites. In South Africa, it was during the apartheid days. It was obviously the black areas. Right now, it's still an area which is where the lower class or economically lower, that's the residential area around which the current lot of dump sites are coming up. The sites which he has named, Bhalaswa, Bhavana, ये मतलब जो एकदम जिस तरह का what do you say, this very sadist sort of, कि आप लोगों को उठा के उनको रीसेटल करते हैं एक जगह पे और उसी के पास आप लैंडफिल क्रिएट कर देते हैं. In both these areas there is a very vibrant struggle which is going on, very vibrant, where women have come to fore saying कि you first pick us out from Yamuna, Pushta and other areas in the name of beautification, and you make us here, and then you decide that this area is going to be a landfill area. I mean, so it's the dignity
aspect is something which is foreign to our administrators, that people have a right to live with dignity. Even जो sites में काम कर रहे हैं, even the so-called green project sites where people, there is no occupational safety. If you notice, the women are the first who are walking around without helmets, without gloves on these sites. Men have gloves. Some of the men have gloves, but women are disposable. They can go in, and you would often see a very, it's a familiar sight right before monsoons, where MCD is clearing up the nalis, where you have young guys, without any boots getting in and just taking out all the things. Now, I mean, this is something which just can't, it's very difficult to digest. And I have always felt that even in our university, which is a residential university, where there is so much forest area, why can't we have composting units? You can't do composting when the kuda has already gone. You have to do it at the level of individual homes, where you segregate things, which is, even in an educated setup, that has not yet come down. Everything is mixed together and sent, and then to be segregated. Is it fair that somebody should put their hands in and take things out? So, there are very important questions which face us. एक तो वो है, दूसरा हमारे, ये तो सिर्फ एक एनेक्डोट है कहानी। 20 साल बाद पहले हमारे एक दोस्त जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे केरल में, ट्रिवांड्रम में, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से एक प्रोजेक्ट कराया था ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें किन के घरों से आती हैं, और सारे अपर क्लास घरों से आती हैं, क्योंकि सबके घर में शैम्पू खरीदा जाता है, सबके घर में सारे डिटर्जेंट और सारी चीज़ें जो बोतलों में आती हैं जिनको बिल्कुल नहीं रिसाइकिल किया जा सकता। तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ये जब इन सब चीज़ों की बातें होती है, एक तो गंदगी, वो तो कोई छूना नहीं चाहता, और दूसरा ये इस तरीके की चीज़ें से सब ग्रीन ग्रीन तो कहेंगे, इनफैक्ट सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के ऊपर ग्रीन लेबल के साथ आती हैं सारी चीज़ें। कोई ऐसा बोतल नहीं है जिसपे ग्रीन नहीं होता, सभी ग्रीन है। पर मुझे आपसे एक सवाल था धर्मेंद्र जी कि किस तरीके से एक मतलब एक वायबल आर्ग्यूमेंट हम लोग बना सकें कि जो आप कह रहे हैं, जो हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं, और ये बीच बीच में ये अलग अलग शहरों में हम सिर्फ केरल की बात ज़्यादा थोड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पर मतलब एक अटेम्प्ट तो बनता है कि लोकल लेवल पे रिसाइकलिंग और ऑल्टरनेटिव चीज़ें जो लोकेलिटी के बेसिस पे किया जाए, वो दिल्ली जैसे शहर में कैसे हो सकता है, और आपके जैसे यूनियन वो किस तरीके से पुश कर पाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, खास करके ये मतलब मैं अभी बहुत इस पे जो है जद्दोजहद कर रहा हूँ कि हम लोग एक उनको कहें, एमसीडी को बोलते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो है हम किसी एक इलाके में करना चाहते हैं, हम नहीं कहेंगे कि हम पूरी दिल्ली में करना चाहते हैं एकदम, और एक इलाके के एक पॉकेट में आप 10,000 फैमिली कहें या 1,000 फैमिली कहें, 2,000 फैमिली को कहें कि हम 2,000 फैमिली को टारगेट करके एक सोसाइटी में करना चाहते हैं इसको। खास करके पहला तो ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन लीगल रूप से, कानूनी रूप से आप वेस्ट पिकअप को दीजिए, और उसको सेग्रीगेट करने के लिए आप जगह दीजिए। वो सेग्रीगेट करने अपने घर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो जहाँ पे रहता है, जिस कंडीशन में रहता है, वहीं पे आप मतलब फोटो में भी, कोस्की के फोटो में बहुत सारे लोगों ने देखा है कि वो जिस कंडीशन में रहता है वहाँ पे वो फोटो वो वहीं पे सेग्रीगेट कर रहा है, वहीं पे रह रहा है, वहीं पे खाना खा रहा है, उसकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी बेहतर नहीं है। तो आप सेग्रीगेट करने के लिए उसको जगह दीजिए और उसको आप ट्रेन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वेस्ट स्पीकर कंपोस्टिंग के बारे में बहुत जान देंगे, हाँ उसको आपको जो है ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एफर्ट नहीं करना चाहती है, और खास करके म्यूनसिपैलिटी जो है वो सारी म्यूनसिपैलिटी, देश की सारी म्यूनसिपैलिटी की यही हालत है कि वो एफर्ट नहीं करना चाहती है। वो बहुत आसान सा रास्ता उनको दिखता है कि निजी कंपनियों को दे दो, और निजी कंपनियां उनको आज की डेट में भी जो निजी कंपनियां कर रही हैं वो सिर्फ आपको ढलाव से लेके जा रही हैं और लैंडफिल तक लेके जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं।
और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी वेस्ट पिकर्स ही जो है, अगर देखा जाए सारे सोसाइटी का कूड़ा जो है अभी भी वेस्ट पिकर्स ले रहे हैं। फेरी सबसे ज्यादा मार्केट में अगर लगाने का काम कर रहे हैं तो वेस्ट पिकर्स कर रहे हैं। लेकिन इनको आप लीगल कैसे करेंगे, वो सरकार उसको करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर इनको लीगल करेंगे तो उनका बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पास वो फिर दूसरे आर्गूमेंट आ जाते हैं कि हमारे पास म्यूनसिपालिटी के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो आप करेंगे। हम कह रहे हैं कि इस तरह का भी लीगल मत कीजिए कि आप ये मत कहिए कि आप तनख्वाह दे देंगे, ठीक है, आप तनख्वाह देने की बात छोड़ दीजिए, तनख्वाह मत दीजिए, लेकिन उसको ये लीगलिटी तो हो कि अभी जो निजी कंपनियों के बाउंसर मार के भगा रहे हैं वो ना भगाएं, म्यूनसिपालिटी का जो वर्कर उसको हरेस कर रहा है वो ना हरेस करे। अभी जो वो 5,000 रुपए किसी सोसाइटी में घुसने का दे रहा है, कूड़ा उठाने का दे रहा है, वो तो ना हो, इस तरह की लीगलिटी हो। और दूसरा कि आप जैसे आपके जो ढलाव घर हैं, आप ढलाव घर देखा है कभी किसी ने, जो मतलब सोसाइटी के आसपास बना होता है, अभी भी उस ढलाव घर में जो बैठने के लिए वेस्ट स्पीकर अगर वहां पे कूड़ा डालने जाता है और कूड़ा वहां पे अगर छाटता है तो पर मंथ उससे जो है 2,000 रुपए 3,000 रुपए पर वेस्ट स्पीकर से जो है म्यूनसिपैलिटी के लोग, निजी कंपनियों के लोग लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि उसको जो है आप फ्री कीजिए और उसको लीगल रूप में इनको कहिए कि ये वहां पे सेग्रीगेट करें। एक ढलाव घर में 10 लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, 10 वेस्ट स्पीकर अपना कूड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं। वो वहां पे अगर सेग्रीगेट कर लेंगे तो वो वही कूड़ा लेके जाएंगे, जो रिसाइकल वाला कूड़ा वही अपने घर लेके जाएंगे। आप उसको घर ले जाने की व्यवस्था मत कीजिए ना, उसको आप वो सेग्रीगेशन की ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वो वहां से भी बेच सके। और जो बाकी पूरे आप ढलाव घर को देखिए, पूरे ढलाव घर को मेंटेन करने के लिए आप ढलाव घर पे चले जाइए, कभी भी एमसीडी के 3 कर्मचारियों का नाम लिखा होता है ढलाव घर पे, 2 स्वीपर्स का, 1 सुपरवाइजर का, कभी आप ध्यान से उसको देखिए। लेकिन वो दोनों क्या करते हैं ना, जो उस पे स्वीपर जो होता है कभी झाड़ू लगाता है और ना सुपरवाइजर कभी आता है, वो लोग सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं। उसको पूरा मेंटेन करने के लिए वेस्ट स्पीकर मेंटेन करता है, उसको झाड़ू भी लगाता है, उसका जो कूड़ा बाहर फैला हुआ था उसको अंदर भी करता है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें जो है इनको कम से कम हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तब जाके जो है ये एक तरह से व्यवस्था सुधर सकती है। Questions? Can you please introduce yourself first? Yes. I'm Jayanti. I'm from Center for Studies in Science Policy Training. मेरा सवाल मशीन से है, मैं बहुत ही इनफॉर्मलाइजेशन की जो बात की है, क्या रीजन है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं ही माइग्रेशन यहाँ पे आ रही हैं? क्या उनकी डिमांड ज़्यादा है इन कामों में? और दूसरा सवाल है, क्या आप ये समझती हैं दिस इज एसेंशियली अ पॉलिसी लूपहोल दैट इज लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? No, see, informalization is a process which is happening all across, okay, which involves men also and all. But the nature of the society is being such, it's women who are being forced into informal work. Okay, for example, a lot of our textile, you have the organized garment industries in Okla, okay, but you also have the household industry जहाँ सितारे those chumkis या फिर काटने के लिए you get piece per pay, you get a piece rate sort of a thing. I mean, the earnings at the end of the day may not be more than even 100 rupees. The men find that, and when we interview women who are doing this sort of job, it's a very tedious, but the men say, at least बच्चे को पालते पालते तुम ये काम इनका, it's like we don't want our women to go out, this is work which they're doing in the house, and so it's fine. And it could range from sewing to even electrical goods, copper wiring or ye wo. Now I'm saying that women, there is this challenge that they are being forced to enter this market where labor laws are not operational, and I think that is what needs to be focused on. That why domestic workers can't there be a minimum rate, and it's not as if it's a policy issue alone.
Okay, it's not as if, if laws are made or something, things will. There's a much larger, like he spoke about gated communities. There is a Supreme Court judgment which says that gated communities are an extension, cooperative group housing societies which are mushrooming everywhere, they are an extension of the home. So labor laws will not be applicable to cooperative group housing What societies. is the thing? Just tell me this because I've been fighting in my colony for the Yes, last I 2 will. years. I'll pass on the Yeah, please exact do. judgment. Yeah. The Supreme Court. I mean, and this is very surprising. They give, and there that it is a horizontal extension of the home. Okay, but most of us who live in cooperative group housing societies know that we have a gardener, an electrician, security, a plumber who are employed 365 days a year. It is a permanent job. So you are taking and using the labor of people, but you're not categorizing and giving them the rights of a worker, which is problematic. So a large class of, earlier the Factory Act would apply only to industrial establishments, etc. Now what we are seeing is a larger dimension of even cooperative group housing society people, those who are employed are not being covered. And this is a serious issue because you have security guards, you have every kind of worker coming in every day following a routine timetable. So this itself is very problematic. So I don't see it as a policy issue. What I see is that look at the argument for the private sector to engage in waste. I mean, they're diversifying into any sort of area that they can. And they're setting the benchmarks in terms of prices. It's a dadagiri. It is a dadagiri. In the construction business, you have DLF, you have all these big companies like Ahluwalia, etc. The EMAR NGF, which was a multinational, which constructed the Commonwealth Games that village. I'd just like to share with you, none of them adhered to labor laws. Minimum wages were flouted, accidents happened, everything happened. The labor department didn't do anything. Finally, the Provident Fund department was approached and said, can you look at the muster rolls? And it's just a coincidence that the person who took that work did it very honestly and said, and actually thought through and said, why are these muster rolls? I mean, all the workers get thumb impressions. I mean, this is bizarre. Literacy would have progressed somewhere that at least 95% of your workers can't just resort to thumb impressions on the muster rolls. This is what is happening in JNU also. The muster rolls were sent for forensic testing. I will give you the order which was issued where it showed that the muster roll, page by page, they had engaged in forgery. They had created false workers. The same thing happened in JNU. Again, the Provident Fund worked on a complaint which was filed for security guards. And Group 4, which is a very notorious multinational company, उनके ऊपर 136 करोड़ का फाइन लगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने forgery की. Okay, and security is big business. SIS continues to do that now. Still, they've also had a report. So I'm just saying that it's not just a question of policy and law here and there. There are major issues and which involve us as a community also. Questions, comments?
question for you. In the Center for Science Policy, are you looking into this green waste? Are there people who are working on this? There are people who are looking at electronic waste. Okay, also. Silampur में भरा है electronic computer e-waste. That's what they But because this is something where carbon trading पे बहुत काम, मतलब it's being touted as green projects, and the energy will be produced and this and that. So, which really needs to be challenged by the people who are residing in that area. Actually, I wanted to ask a question to Dharmendra कि ये पुलिस हैरेसमेंट के बाद आप थोड़ा ज़्यादा बताएंगे कि कितने लेवल्स पर कैसे ये हैरेसमेंट होते रहते हैं? देखिए, एक तो ये है कि किसी भी सोसाइटी में अगर चोरी होती है तो सबसे पहले जो सोसाइटी में वेस्ट पिकर जाता है उसको उठाते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर किसी मार्केट में चोरी होती है तो जो वहाँ फेरी लगाता है, क्योंकि सबके अपने ठिकाने हैं फेरी लगाने के, और कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर मतलब देखेंगे रोहिणी सेक्टर 18 में जो इस रोड पे फेरी लगाते हैं 4 लोग, वो डेली आपको 4 मिलेंगे, ठीक है, और वही 4 लोग उठाए जाएंगे, ठीक है। उसने चोरी की हो या नहीं की हो। कल एक लड़का आया था हमारे साथ नूर करके, उससे बात नहीं हुई थी, वो अपना एक्सपीरियंस रखना चाह हाँ रिंटू के साथ कल वो एक्सपीरियंस रखना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं रख पाया। वो एक्चुअली में सेक्टर 18 की रोहिणी में एक सोसाइटी है परवाना अपार्टमेंट। उस परवाना अपार्टमेंट में एक सब इंस्पेक्टर साहब रहते हैं और उनकी पत्नी रहती हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनकी सोने की अंगूठी जो है वो कहाँ उन्होंने रखी उनको पता नहीं है, और वो कूड़ा लेने गया और कूड़ा जो है उसने बाल्टी से अपने झोले में पलटा और वो आ गया। उसको 2 घंटे बाद वो गार्ड के पास गई और बोले कि जो वो कूड़ा लेने आया था वो मेरी सोने की अंगूठी चुरा के ले गया, ठीक है। उन्होंने 2 घंटे बाद जब वो उसको पता चला तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस से उसको घर से उठवा दिया। घर से उठाने के बाद उन्होंने कहा कि तूने मेरी अंगूठी चुराई। उसने कहा कि जी मैंने तो नहीं चुराई, मुझे पता ही नहीं है। तो उनसे जब उसने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, मुझे वहाँ सेक्टर 18 के थाने में बुला लिया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं 1 घंटे बाद पहुंचा तो मैंने बोला कि क्या हुआ। तो जो मैडम थी, मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा क्या अंगूठी चुराते हुए, या आपने कहाँ रखी थी? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखी थी, घर में ही होगी मेरी अंगूठी। तो मैंने कहा कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपने अंगूठी रखी कहाँ, घर में होगी, तो इसने अंगूठी चुराई कैसे? आपको पता ही नहीं है, यही नहीं पता है। बोली नहीं, इसी ने चुराई है। मैंने कहा कि अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि इसी ने चुराई है, आपको यही नहीं पता कि आपने अपना सामान रखा कहाँ, या तो ये जहाँ किचन में गया आपने वहां पे रखी हो अंगूठी, वहां से इसने उठाई। उन्होंने कहा नहीं मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रखी है, पर ये कूड़े वाले ही इसी तरह का काम करते हैं, यही चुरा के लेके जाते हैं। तो एक तो उसको जो है अरेस्ट किया इन्होंने, पुलिस में दे दिया अल्टीमेटली पुलिस वाले, क्योंकि उनके पतिदेव जो है सब इंस्पेक्टर थे, इसलिए वो जो है उसको थाने में उन्होंने फोन करवाया, ले गए। उसको कोर्ट से जमानत करवानी पड़ी हमें, जमानत करवा के छुटवा के लाए। एक इस तरह का हरेसमेंट है। दूसरा हरेसमेंट जो बड़ा हरेसमेंट है, अभी इस समय थोड़ा कम हुआ है। अगर मैं अपेक्षा करूं वो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट से और इस गवर्नमेंट में अगर एक वो करूं, तुलना करूं, तो थोड़ा कम हुआ है। बीजेपी के गवर्नमेंट के समय में सबसे ज्यादा वेस्ट स्पीकर्स को उठाया गया था बांग्लादेशी के नाम पे, लेकिन अभी वो हरेसमेंट कम हुआ है। मतलब अभी भी हरेसमेंट है कि रात को अगर 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद, देखिए 3 शिफ्ट में लोग फेरी लगाते हैं। एक तो सुबह जाते हैं जो सबसे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकल जाते हैं, या 3 बजे निकल जाते हैं जो दूर वाले होते हैं, वो फेरी लगाने। दूसरा जो है 9 बजे लोग निकलते हैं, और तीसरी शिफ्ट होती है रात को, जो कि अपने घर से 8 या 9 बजे निकलते हैं। तो जो 8 और 9 बजे निकलते हैं, वो वाली शिफ्ट जो होती है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को हरेस किया जाता है, क्योंकि मार्केट जो है बंद होते हुए 11 बज जाता है, और मार्केट के आसपास जो भी गत्ता, कागज और जिस तरह की मार्केट होती है उसको सब उठाने में उनको टाइम लगता है, फिर छाटते हैं। वो अगर 12:30 बजे 1 बजे लौट रहे हैं और पुलिस का कहीं भी बैरियर लगा हुआ है, तो वो पुलिस उनको रोक के हरेस करती है। ये कंटिन्यूअस होता है, और इस पे हम लोग कंटिन्यूअसली जो है
रात को, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन रात को जरूर हम थाने में तो जाते ही हैं, और क्योंकि उनको परेशान करते हैं, कहीं रोकते हैं, पीटते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी वाला अभी पिछले दिनों, मतलब पिछले 2 महीने 3 महीने से कोई केस नहीं आया। मतलब मैं थोड़ा सा वो हूँ, मैं शांति से सो सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का कोई केस नहीं आया। नहीं तो ये रेगुलरली जो है बांग्लादेशी के नाम पे, और मतलब एक केस बताऊंगा कि अभी कभी किसी को एक्सपीरियंस, किसी को अगर विजिट करनी हो तो मैं उनको विजिट भी करा दूंगा। 3 लड़के, रिठाला मेट्रो स्टेशन है, रिठाला मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में 1000 परिवार, और सारे परिवार मुर्शिदाबाद के हैं। वो परिवार वहां पे रहते हैं। 2 लड़के, एक छोटी सी चाय की दुकान है, वो पूरा वहां पे उनका अपना ही बाजार लगता है। मतलब कई बार ये भी लगता है कि वो पूरा एक तरह से अगर देखा जाए तो उनकी एक पूरी एक दुनिया होती है। शाम को अगर सुबह चले जाएं, वो लोग सब कुछ मार्केट सब कुछ वहीं लगता है। 2 लड़के बैठ के दारू पी रहे थे। उन दोनों लड़कों को 8 या 9 बजे के आसपास एक कांस्टेबल उठाता है और उसको थाने में ले जाता है। थाने में ले जाने के बाद उस कांस्टेबल ने कुछ नहीं किया, और उसने जो है कि सीधे जो है वो रोहिणी सेक्टर 18 में जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, वहां पे उसने शिफ्ट कर दिया उनको। ये थाना जो वहां का थाना विजय विहार का थाना लगता है, विजय विहार थाने से उसको जो है सेक्टर 18 के क्राइम ब्रांच थाने में दे देता है। क्राइम ब्रांच जो है उसको सीधे जो है बांग्लादेशी सेल में दे देती है। और बांग्लादेशी सेल में इतने प्रोसेस में उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं करने दी है। जब तक हम लोग पहुंचते हैं तो ये पता चलता है कि विजय विहार से वो रोहिणी सेक्टर 18 चले गए, रोहिणी सेक्टर 18 पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि यहाँ चले गए। जब तक वहां जाते हैं तो वो किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं मानते हैं। जब उनको ये दिखाया जाता है कि ये बंगाल के मुर्शिदाबाद के इस गांव के, ये इनका वोटर आई कार्ड है। उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा कि ये 100 रुपए में, बंगाल में 100 रुपए में वोटर आई कार्ड बनता है। हमने कहा कि फिर ये 100 रुपए में वोटर आई कार्ड बनता है तो फिर आप जो है इसका वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इसको 2 दिन रोक दीजिए। 2 दिन रोक के आप वहां के डीएम को, एसडीएम को, जिसको भी लिखना चाहते हैं वो वेरिफिकेशन करवाइए, तब जाके आप इसको भेज सकते हैं। वो मामला अल्टीमेटली करने पे रुक गया। उन्होंने जो है कहा कि ठीक है हम वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिर उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई। वेरिफिकेशन करवाने के बाद 3 दिन बाद उन्होंने उसको छोड़ा जो है। तो 3 दिन वो लॉकअप में रहे। हाँ, 3 दिन लॉकअप में रहे। तो ये जो है, ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो है वहां पे पुलिस के खास करके रहते हैं। और दूसरा कि जैसे ये भी है कि जो बस्तियां हैं ना, वो जिन बस्तियों में रहते हैं वो सारी बस्तियां ऐसी हैं कि वो लोग किराया भी देते हैं, और ऐसे लैंडलॉर्ड हैं, ऐसी जगह हैं जहां पे एकदम आप ओपन स्पेस है, ओपन खुला खेत है, उसमें किसी को वो किराया दे रहे हैं, कोई एक लैंडलॉर्ड है, वो जमीन भी किसी की नहीं है। जबकि अगर ऑन पेपर देखें तो रोहिणी सेक्टर 18-19 से लेके और बवाना तक कोई भी ऐसी जमीन नहीं बची है जो किसी लैंडलॉर्ड के पास हो। वो सारी जमीनें डीडीए ने एक्वायर कर ली है, और उन एक्वायर जमीनों पे जिससे उन्होंने मुआवजा ले लिया, उन जमीनों का भी वो रेंट ले रहे हैं इन्वेस्टिकर्स से जो है, ये जो वहां पे रह रहे हैं। इन बस्तियों में खास करके जो लैंडलॉर्ड हैं और वो लोकल हैं, या जाट हैं या गुजर हैं, वो लोगों का पुलिस के साथ एक नेक्सस है। कई बार पुलिस जो है ये जो गुजर लोग हैं, ये लोग भी अपनी उगाही कराने के लिए पुलिस वालों को भेजते हैं। मतलब कई बार ऐसा भी आया है कि वो ग्रुप में बाकायदा पुलिस वालों को भेजेंगे। जब उनको उगाही करनी है तो वो पुलिस वाले जाएंगे, हर घर से जो है 100-100 रुपए, 50-50 रुपए उगाएंगे, और वो उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो किसी तरह का, एक तरह से देखा जाए, अगर जो चालान भी, एमसीडी भी चालान काटती है कि आपने रोड पे कूड़ा फैला रखा है, अपने घर के बाहर ये कर रखा है, दुकान के बाहर ये कर रखा है, वो तो इसलिए कहते तूने ये कूड़ा यहाँ क्यों, ये अपना माल यहाँ क्यों रख रखा है, इसके लिए 100 रुपए दे। तो एक तरह से पूरा इलीगल तरीका है वो पूरा उनका जो है वो करने का। एक इंसिडेंट हुआ था, वो कोस की एक बार फोटो खींचने गई थी, मतलब जब ये एग्जीबिशन की तैयारी चल रही थी, तो वो जो एक लैंडलॉर्ड था जिस जगह में वो पूरी बस्ती है, मतलब 1,500-2 हजार परिवार रहते हैं, वो बुला के बोलता है कि आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं, इस बस्ती में कैसे आ रहे हैं, आप कहीं भी चले जाओ पर मेरी बस्ती में नहीं आने चाहिए, यहाँ से आपको कोई फोटो नहीं खींचनी, यहाँ से कुछ नहीं करना। जेएनयू में मतलब सिटी डेवलपमेंट प्लान दिल्ली का बना था, उसमें वेस्ट बहुत बड़ा एक मतलब बताया कि जो है सरकार इसको, इस समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है, और इसलिए प्राइवेट एजेंसीज का घुसना बहुत जरूरी है।
क्योंकि लैंडफिल साइट्स जितनी भी हैं दिल्ली में वो सब भर रही हैं और हमें नई लैंडफिल साइट्स की जरूरत है। तो मेरे आपसे दो सवाल है, एक तो कि ये आर्ग्यूमेंट से आप कितना सहमत है कि सरकार असक्षम है इस समस्या का समाधान करने के लिए और इसलिए प्राइवेट निजी कंपनियों को घुसना चाहिए और इस तरीके के प्लांट्स लगाने चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो आपने जो वेस्ट कंपोस्ट प्लांट और जो हमें इन दो प्लांट्स के बारे में बताया, एक वो वेस्ट टू एनर्जी पवाना वाला और दूसरा भी जो कंपोस्टिंग प्लांट है, क्या ये मतलब नए प्लांट्स है, ये किसी के तहत ड्रेनेज निवारण के तहत नए प्लांट्स है या मतलब इन निजी कंपनियों ने क्या कोई नए प्लांट्स लगाए हैं दिल्ली में? देखिए, एग्जिस्टिंग लैंड। हाँ देखिए, अभी तो 3 प्लांट है जिसमें से 2 वर्किंग हो गए हैं। दूसरा प्लांट अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले गाजीपुर का प्लांट वर्किंग हुआ है। अभी वो पूरी तरह से वो अभी इसमें 2 टेक्नोलॉजी है, एक बर्न करने की टेक्नोलॉजी है, दूसरी आरडीएफ की टेक्नोलॉजी है। तो दिल्ली में जो तीनों प्लांट जो है जब इनको अप्रूव किया था एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने तब इनको आरडीएफ टेक्नोलॉजी दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या चालाकी की, अब क्या गेम किया ये तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने सीधे जो है ये गाजीपुर ये ओखला वाले प्लांट में ना तो बर्न की जो परमिशन मिल गई है उसको, और इनको जो है जो अभी जो हमारा ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और इसमें भी एक और चीज है, देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी 2 नॉर्म्स हैं, एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक जो एमएसडब्ल्यू रूल्स है उसके तहत जो दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। जो ये प्लांट है इसके लिए एक स्पेशल जो है नॉर्म्स बनाए थे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अगर नॉर्म्स को अभी तक कोई भी प्लांट जो है फॉलो नहीं कर रहा है और पूरी तरह से उससे कोई माना नहीं जा रहा है, वो उसका तो वायलेशन है। लेकिन जो है ये जो प्लांट हैं वो प्राइवेट कंपनियों के, वो ये कह रहे हैं कि हम एमएसडब्ल्यू रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इस पे कैसे आप वो करेंगे। आप सेंट्रल पॉल्यूशन और इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते आप, वो कहेगा कि हम एमएसडब्ल्यू रूल्स को मान रहे हैं, जो एमएसडब्ल्यू रूल्स की गाइडलाइन में दिया हुआ है वो जिंदल जी कहते हैं कि हम तो इसको मान रहे हैं, और वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पे वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोले कि भाई हमने जो इस पूरे प्लांट्स के लिए जो गाइडलाइन बनाई थी उसको आप फॉलो करो, तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और इस पे अब बोलने के लिए जो संगठन और यूनियन या जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो लोग बोल रहे हैं वो इसी तरह से कि मतलब आवाज इतनी है कि वो हम लोग या तो मीटिंगों में बोल लेते हैं या थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन उस तरह की आवाज है नहीं। दूसरी देखिए, जेएनयू में जो पूरी प्लानिंग थी, इससे पहले का इतिहास समझना पड़ेगा कि 2003 और 2004 में वर्ल्ड बैंक ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे पूरी एक स्टडी की थी, और वो स्टडी जो है उसने जो है ये सुझाव दिया था कि हिंदुस्तान में अब सरकार के बस का कोई काम नहीं रह गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी निजी कंपनियों के हाथ में सौंपना पड़ेगा। और एक और बात आपको बता दूं कि उस स्टडी में मतलब कई बार ये भी होता है कि उस स्टडी में हमारे देश के बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो कहते हैं तथाकथित इन्वायरमेंटलिस्ट कि हम लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे थे उस समय। बाद में जब निजीकरण हो गया, उनकी रिकमेंडेशन है उस स्टडी में, और बाद में वो लोग निजीकरण के खिलाफ भी खड़े हो गए। ठीक है, ये अपने आप में दोभाषी बात है कि आप पहले तो वर्ल्ड बैंक के साथ आपको कंसल्टेंसी फीस लेनी थी, तब तो आप जो है निजीकरण को सपोर्ट कर रहे थे, और जब आपको जो है आपकी कंसल्टेंसी फीस मिल गई उसके बाद कुछ दिखाना है कि आप आंदोलनों के साथ भी खड़े हैं, तो जो है आप हमारे साथ आके कहने लगे कि निजीकरण खराब है। तो ये बड़ी दोभाषी बात है। और उसमें जो है जब जेएनयू का पूरा प्लान बन रहा था, बहुत सारे ऐसे प्लान भी आए थे जिसमें सरकार को ये कहा था कि आप निजीकरण ना करें। बहुत सारे उस समय प्लान आए हैं कि आप जैसे जेएनयू में जब हम लोगों को भी बुलाया गया था अपनी बातचीत रखने के लिए, तो हम लोगों ने पूरा उसका विरोध किया था। हमने कहा था कि भाई आप इसकी जरूरत नहीं है, आप निजी कंपनियों को मत लाइए, ये जो वेस्ट स्पीकर्स हैं इनको आप किसी तरह का स्टेक तो दीजिए, ये काम तो कर रहे हैं, आप इनको पैसा भी नहीं पे कर रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं। लेकिन उसको पूरी तरह से उन्होंने दरकिनार कर दिया। अगर उसको दरकिनार नहीं करते तो शायद स्थिति दूसरी होती। आज स्थिति जो है देखिए क्या है कि अब कितना शेयर है कितना नहीं है। अभी मैं आरटीआई से अगर उसको पब्लिक करूंगा कुछ दिनों में, अभी आरटीआई से मैंने एक कंपनी का बिल मंगवाया है। रोहिणी जोन में दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
जिसमें इन्होंने कहा है कि 1490 रुपए पर टन हम इस कंपनी को पे करेंगे। वो गाड़ी जो है, वो चाहे गाड़ी खाली ले जाए, कैसे ले जाए, अगर जो वहां का एसआई जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, अगर वो लिख दे कि ये गाड़ी 1 टन की है, तो उस निजी कंपनी का बिल पास हो गया। ठीक है, आप एसआई को कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पर, वो दीगर बात है कि वो एसआई 100 रुपए में बिक जाता है, 200 रुपए में बिक जाता है। ठीक है, अभी जो इस तरह का इन्होंने बिल का, अभी इस कंपनी को जो बिलिंग हुई है, 1 महीने का जो है 17 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई है सिर्फ अकेले रोहिणी जोन की। ठीक है, और वो 17 करोड़ में इन्होंने क्या किया है कि जब इनका वो, मतलब एक मेरा दोस्त है उस कंपनी में नौकरी करता है, तो मैं उससे बातचीत कर रहा था कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया कमिश्नर और इंजीनियर ने लिया है, तब जाके 17 करोड़ रुपए का बिल पास हुआ है। लेकिन अब ये सब चीजें कहीं लिखित में है नहीं, ऑर्डर में नहीं है, लेकिन इसको आप कह नहीं सकते। बरवली तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये कह नहीं सकते। तो ये जो एक बड़ा जो करप्शन का गढ़ है, इसलिए भी ये निजी कंपनियों को देना चाहते हैं। अभी देखिए कि और दूसरा एक सवाल और भी है कि आने वाले दिनों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आज की डेट में सक्सेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने तिमारपुर का प्लांट, आप लोगों ने अगर देखा होगा, तिमारपुर का प्लांट आपने देखा ही था, 1990-91 में चला, जिसने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की, और उस प्लांट को अब तोड़ दिया इन्होंने। और उस जिस कंपनी से इन्होंने टेक्नोलॉजी ली थी, उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया था कि हिंदुस्तान का कूड़ा एनर्जी के लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन उस 91 में, अब उस समय ये बात सही हो सकती है उस कंपनी की, क्योंकि अब थोड़ा सा कूड़े में बदलाव आया, जो हम लोग भी मानते हैं कि शहर जिस तरह से बने और जिस तरह से शहरी कल्चर में पूरा चेंज हुआ, लेकिन कूड़े में बदलाव आया। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरी अभी भी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए 6 महीने से ज्यादा हो गया मुझे, गाजीपुर का प्लांट चालू है, सुखदेव विहार का प्लांट चालू है, अब तक उसने टोटल 5 यूनिट बिजली पैदा की है, जिसमें कि 5 यूनिट बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने 300 टन कोयला डाल दिया। और सारा जो ये पतझड़ का टाइम चल रहा है, एनडीएमसी के इलाके से सारे जो है पत्ते ले जाके उस प्लांट में डाल दिए। अभी वो कूड़े से बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, अभी भी जो है ये प्लांट पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कूड़े से बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ये प्लांट जो है पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। ये एक बड़ा खेल है जो कंपनियों को जगहों पे जो इस तरह के लैंड पड़ा हुआ है, इस इशू को, मतलब खास करके की जो जगह पड़ी हुई है, आप बवाना और नरेला जैसे इंडस्ट्रियल इलाके में 5 एकड़ जगह किसी निजी कंपनी को दे रहे हैं, जिसकी कीमत जो है आप 50 पैसे स्क्वायर फीट जो है लीज पे जो दे रहे हैं। तो एक ये बड़ा जो है इशू है, जिसको कि अभी लैंड का जो है इसको दरकिनार नहीं कर सकते। जो है अभी बहुत सारे लोग जो है इससे बोलने पे जो है, इस बात को बोलने से हिचकिचा रहे हैं कि ये कहीं से लग नहीं रहा है कि ये इस तरह का इशू होगा, लेकिन बड़ा इशू ये है कि ये जमीनों पे कैसे कब्जा किया जाएगा। मैडम, ये चाइल्ड लेबर का इशू जो पूरे देश का इशू है, मेरठ में तो बहुत उसको लेके बहुत सारी चाइल्ड लेबर जो वहाँ पर काम करते हैं, और ज़्यादातर जो गर्ल चाइल्ड हैं वो अधिकतर किस कम से ज़्यादा हरासमेंट, बॉयज होते हैं स्कूल चले जाते हैं, महिला रह जाती हैं घरों में, और बच्ची, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको उसके केयर के लिए भी बच्ची को नहीं करना जाता है। तो ये तो आपकी बात ठीक ही है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर में विमेन को लेके ज़्यादा, विमेन चाइल्ड को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ये घरेलू समस्या है, ये किसी भी एक्ट में आता नहीं, क्योंकि ये इसको लेबर काउंट होता ही नहीं। तो क्या करें इसके लिए, क्या मैं उस रोड पे ही नहीं जा रही कि वो घरेलू समस्या है या ये घरेलू, जैसे आरटी में एजुकेशन में उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पेरेंट्स का तुमको पूरा ढांचा देखना चाहिए, देखना
तो पेरेंट्स क्यों इन्वॉल्व हैं? और पेरेंट्स मतलब पूरा जो ढांचा है जो कि मतलब हम उनका लेबर ले रहे हैं, हम सब कुछ वो कर रहे हैं, पर उनको वो हक नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो चाइल्ड का हो रहा है, चाहे वो एडल्ट का शोषण हो रहा है। बात है कि आप काम करवा रहे हैं, पर जो एक न्यूनतम मजदूरी है, चाहे वो मतलब डोमेस्टिक वर्कर के उसमें तो खुल के आता है ये बात कि मतलब क्यों नहीं एक न्यूनतम मजदूरी हो सकती, क्यों उनको इस तरह से, या फिर जो उन्होंने बांग्लादेशी की बात की, और मुझे जो क्योंकि मेरे पिताजी बांग्लादेश से आए थे और एक अफिनिटी है, मतलब अब गुड़गांव में जाओ या कहीं भी जाओ, बांग्लादेशी महिलाएं आपको मतलब उस इलाके से आपको मिल रही हैं। उनको दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए पूरा अपना हुलिया बदलना पड़ता है। जो कभी बिंदी नहीं लगाते वो बिंदी लगाएंगे, वो शाखा पौला पहनेंगे, एक हिंदू नाम अपनाएंगे। हाँ, मतलब अगर काम के लिए इतना कुछ करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। And that is one of the reasons why, I mean, some of us have been saying that we must have migrant economic rights being recognized for people across the border. In every civilized place, let them come, let the transfer be. Why should the dagger that you are a foreigner hang on your head? You have no problems with Nepali migrants. They are working, but when it comes to a Bengali, you don't even know whether, I mean, there's nothing to tell you whether वो across the border आए हैं या क्या, मतलब, but point है कि वो उनके सर पे सब समय एक तलवार क्यों रखी जाती है, और वो एजिटेशन क्या, अपनी मांग भी नहीं रख सकते। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, हमारी दिल्ली पुलिस, in order to, it had got workers, in order to get rid of them and to clear, you would have seen all the sideboards which went up, but the other thing which they did was they rounded up जितने भी camps बने थे for construction labor, they said September end में, क्योंकि वो गेम शुरू होने वाला है, they put a stamp, and that stamp would allow them free access on trains. I mean, this was stopped immediately within a day because of the, how can you stamp people like as if, there's some cattle or brand that this has to be, and you send them back because you don't want others to see. Who are you fooling? I mean, so कहीं ना कहीं ये एक इशू है। I mean, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो एडल्ट का। जानकारी दी है, वो पहली बार मैंने जाना है, तो निजीकरण पूरे का जो आपने बात की है, तो उसमें भी मतलब सरकारी जो निर्माण जिम्मेदार है, उसको जो बड़ा कमीशन मिलता है, वो भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में आजकल निजीकरण बहुत आम एक प्रचलन हो रहा है। तो जो जिम्मेदार पर्सन होता है अथॉरिटी, उसको जो बड़ा कमीशन मिलता है, उस पर रोक लगाई जाए तो भी थोड़ा कम रहेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इससे पहले मैं ये जान नहीं पाया था कि ये एक तरह से जो हैरारकी जो है, तो इस हैरारकी में ऊपर हम जाते हैं तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या मतलब जो अमीर लोग हैं उन्हीं को पाते हैं, मतलब समस्याएं छोटी छोटी हैं, लेकिन जब कड़ी में जाते हैं तो ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग पाते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी होती है आपकी, लेकिन ये निजीकरण की समस्या आप किस तरह से मतलब इसको सुधारने के लिए क्या आप सुझाव देंगे? तो बड़ा पेचीदा सवाल है, सुझाव तो मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि निजीकरण तो सरकार की पॉलिसी है। 91 के बाद जो है
पूरे देश में जो है मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि भैया बदलो, जो है अपने आप को, बड़े पुराने हो गए हो, ठीक है। अब वो बदलने की प्रक्रिया में हम लोग जो है एक बात और जोड़ना चाहूँगा। नेशनल आर्काइव्स में मेरे दोस्त वगैरह ने काम किया है, तो मिनिस्ट्री के थ्रू प्रोजेक्ट में काम किया था मैंने। तो उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मंथली जाती है, सारा मतलब उनको इन्वॉल्व रहना पड़ता है जो वहाँ अथॉरिटी है। तो अब आइंदा जो है आने वाले टाइम में वो निजी मतलब उसको निजी कंपनी को देना चाह रहा है। तो उसमें एक बात ये भी देखने को मिली कि वो तो अपनी जिम्मेदारी से या एक्स्ट्रा वर्क से बचने के लिए भी वो निजी कंपनी को देना चाह रहे हैं। और साफ तौर से अनुमान है कि मतलब एक बड़ा मतलब कमीशन भी मतलब उनको होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर भी होता है। आप डेटा ऑपरेटर्स देख लीजिए ना, डेटा ऑपरेटर्स पूरा बैकहैंड सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है गुड़गांव और सब में, सब ग्रेजुएट है, मतलब 12वीं पास तो है ही, हाँ, पर निजीकरण से क्या हुआ है कि चाहे आप 12वीं पास हो, चाहे आप कुछ भी नहीं, आपका कोई मिनिमम वेज लागू नहीं हो रहा। आपको एक थोक में 10,000 रुपये दे दिया गया, जिसमें 8 घंटा से 12 घंटा आप करेंगे। तो इट इज समथिंग विच इज across the different professions, different skill levels. बट आप मारुति में ये था, हमारे जेएनयू में भी यही है। लाइब्रेरी, आप काम एक ही कर रहे हैं एज अ परमानेंट वर्कर, यू आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द सेम थिंग, बट देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट वर्कर, द सैलरी ड्रॉन एंड द salary drawn by temporary workers. It's a big issue. Yeah, I would just like to add that, sorry. टेम्परेरी वर्कर को तो ज़्यादा करना पड़ता है कुछ। नहीं, पर आपका एक ही काम कर रहे हैं तो सैलरी तो अलग नहीं हो सकती ना। कई संस्थाओं में तो टारगेट बेस्ड भी काम करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग होता है। I just wanted to add that given the JNU situation, that particularly I think lots of us are here from who eat in the hostel messes, and there are actually quite a lot of contractual workers, and increasingly mess work is being given out to contractual workers instead of permanent employees. And so far, I don't think the students have actually kind of given enough attention to what kind of privatizations are happening in their everyday lives. I mean, construction work is one, and the mess workers, the malis working in the hostels, the waste pickers, of course, working in the hostels, and who are they? What kind of contracts they have, that is something which I think that in this campus is something which I think we should take into account very seriously. Dean of Students, there's a written communication where the Dean of Students, I had asked through again an RTI, where people don't have leave. Oh yes, no. In JNU, people working in hostels don't get leave. This is India shining in ways where where security guards, they don't get leave. So okay, if you work that extra day, as per law you are supposed to be paid double. Okay. Overtime. So, overtime. I mean, no, it's a separate because you're working on that holiday. Now, Dean of Students says JNU has no policy regarding leave. On paper, there is this. You please go back to your hostels and ask your wardens. Matlab, so no, with the rest, I'm just saying that what sort of a country are we where we are saying family, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को ये करो, वो करो, but you don't even give people either the time or the resources so that they can do something for their family. So all this talk of pro-poor and all, I mean, well, it's all very shameful. I mean, that you don't have a system of, and you just have to put yourself in that place to see whether you would agree to work on something where you don't have even a day's chutti. Yes, That is all. I mean, it's nothing. there is no use. Technically, all class 4 employees now in JNU are
contract. So, you know, which has happened in the last 7 years. And it's exactly the same. The minute it becomes contract, then there is all, but the interesting thing is, because we pay from the program, which is how I know the financial side of it. It's not coming from departments. See, department you don't handle it directly, it goes from the university. क्योंकि हम लोग खुद करते हैं. मजे की बात ये है कि जो तनख्वाह हमारे डिपार्टमेंट में जिसकी उनको मिलता है उसका मोर देन हाफ हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, क्योंकि टेक्निकली उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में है कहा जाता है कि उनके प्रोविडेंट फंड और इन सब चीज़ों के लिए, और वो क्योंकि इनको ला रहे हैं उनका अपना कमीशन है. तो अगर मान लीजिए इनका तनख्वाह 4,000 है तो हम 8,000 से ज़्यादा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को. और अगर कल कोई आपत्ति हो गई और वो वहाँ से प्रोविडेंट फंड या मेडिकल उनका जो बेनिफिट है उसको लेना चाहेंगे, वो उनको पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा. दैट वी नो. So this is actually something that has happened in the last 7 years. But Moldavika, the interesting thing is, जब जो मौसमी के साथ हम लोग पहले बात कर रहे थे, जब यहाँ पे शुरू हुआ था स्टूडेंट्स ने और यूरिया से मौसमी और लोगों ने जब किया था पहला सर्वे, तब एक्चुअली एक ये था कि सब कॉन्ट्रैक्ट हर जगह में, हर डिपार्टमेंट में, लिस्ट सिर्फ नहीं पर हर जगह पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें हो रही हैं उसका लिस्ट बनाना था और बनाया गया था. अगर हम आज देखें 6-7 साल के बाद, ये तो जरूर स्पष्ट होगा कि बहुत मतलब वो बढ़ गया है. बट वो किसी ने करना है. अगर हम ये कर पाए तो वो एक बहुत ही यूजफुल स्टेटिस्टिक होगा जिसके साथ हम कुछ कर पाएंगे. नहीं, एंड अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट, लाइक यू नो, हॉस्टल स्टाफ, ये लाइब्रेरी, सफाई कर्मचारी, everything, you know, I mean, everything. we need to do it. I mean, you know, we need to make, I mean, labor can't be just looked at labor history conference, please. I mean, you know, वही हो गया है अभी. मुझे आपसे एक सवाल था कि अपने संगठन इस इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिसमें एटलीस्ट एक या दो चीज़ें जहाँ पे संस्था बनाने के बाद आप लोग कर पाए. अगर वो असंगठित होते तो जो नहीं कर पाते, और आपके ये करने के बाद क्या हुआ, उसमें उसका एक थोड़ा सा बताएंगे. देखिए, 2 काम हम लोगों ने किया. एक तो आज की डेट में हमारी बस्तियों में पुलिस परेशान नहीं करती, ठीक है, क्योंकि हमारी बस्ती में किसी से जाके पैसा, जैसे पहले होता था कि जाते थे 100 रुपये उगाही करते थे, उस तरह का कोई पैसा हमारी बस्ती से नहीं हुआ था, ठीक है. दूसरा काम ये किया है कि हम जिन सोसाइटी में जहाँ पे हमारे लोग जाते थे, आज उस निजीकरण के बाद, बाउंसर रखने के बाद भी, आज उसी सोसाइटी में जो हमारे लोग जा रहे थे, जो हमारे मेंबर्स हैं, हम लोग यूनियन का एक कार्ड देते हैं. मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ. हम लोगों की यूनियन है, उसका कार्ड हम लोग देते हैं. वो कार्ड लेके वो लोग जाते हैं और कंपनी के लोग जो है रोकते नहीं हैं, क्योंकि हमने तय कर लिया था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो या तो हम नहीं रहेंगे या तो ये नहीं रहेगी, कंपनी नहीं रहेगी. हम लोगों ने रोहिणी जोन के अंदर उनके 3 गाड़ियां फूकी थी. हमने ये तय कर लिया था कि या तो हमारा संगठन रहेगा, या तो हम काम करना छोड़ देंगे, या ये निजी कंपनियां ही रहेंगी. तो हम लोगों ने 3 गाड़ियां फूकी थी, और उसके बाद जो है हम लोगों को ये स्पेस मिला कि आज की डेट में हमारे रेस स्पीकर्स उस इलाके में जाके काम कर रहे हैं. ये जो है 2, और यही एक ठोस कारण है कि हम इतने दिनों तक, आज तक अपने संगठन को और यूनियन को बिना फंडिंग के चला पाए. और कितने साल से चल रहे हैं? मैं 2002 से लगा हुआ हूँ, और ये किस तरह का हम लोग कार्ड देते हैं, ये ठीक है. ये कार्ड एक्चुअली में खराब है, इसका कलर दूसरा है, ये मतलब फेड हो गया. और ओरिजिनल कलर. तो आप लोगों को कैसे बताते हैं अपने यूनियन के बारे में, देखिए, ये और तो यूनियनाइजेशन आपने किस तरीके से शुरू किया और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, एक्चुअली में हम लोगों यूनियन तो हमने शुरू की थी बवाना से. बवाना में रिसेटलमेंट हुआ था, और वो रिसेटलमेंट हुआ था, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी. और क्योंकि बवाना के, मैं बेसिकली नौकरी करता था एक संगठन में. मैं नौकरी करता था, कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक संगठन है निर्माणा,
उसके साथ मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो ठीक वो है। 120 रुपए लेती है हर वर्कर से रजिस्टर करवाने के लिए, जो जबकि 25 रुपए है रजिस्ट्रेशन फी। हाँ, तो हमको बहुत प्रॉब्लम है उसका कटन से। नहीं, वो तो फिर भी जेन्युइन है। आज की डेट में ऐसे संगठन है जो 500-500 रुपए ले रहे हैं रजिस्टर्ड करवाने के लिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी यूनियन है। एक जमाने में दिल्ली में 4 यूनियन थी कंस्ट्रक्शन वर्कर की, आज की डेट में 35 यूनियन है रजिस्टर्ड। मतलब मैंने वो बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है, 2003-4 में ही छोड़ दी थी। उसके बाद मैं एक्चुअली में बेसिकली वो बवाना में उनके साथ ही काम कर रहा था। वहां पे एक केस हुआ था, हम लोग एक सेंटर था, वहां सेंटर में बैठे हुए थे। एक केस था, एक लड़का था जो है, नूर इस्लाम नाम था उसका जो है क्या हुआ कि वो कहीं से माल लेके आया था और वो तार लेके आया हुआ था। तार जो है एल्यूमिनियम उसके अंदर होता है, तो वो तार जो है वो जला रहा था। और वो जला रहा था तो एक पुलिस वाला आया और बोला कि तू चोरी करके लाया है। उसने उतना जोर का थप्पड़ मारा कि उसके कान का जो है पर्दा फट गया, मतलब ब्लड आ गया। तो उसने जो है वो हम लोग सेंटर में बैठे हुए, तो वो हम लोगों की मेंबर भी थी, उसकी माँ जो है, तो वो वहां पे आई और उसने जो है कहा, मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे है। तो हम लोग चौकी में गए और उस पुलिस वाले ने हम लोगों को डांट के भगा दिया, उसने कंप्लेन नहीं लिखी। फिर हम लोग जो है उस समय थाना जो है बवाना में जो चौकी थी उसका थाना जो है नरेला लगता था, तो हम लोग नरेला में गए और वहां पे जाके हम लोगों ने एसएचओ से कंप्लेन किया। और कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ कि वो पुलिस वाला सस्पेंड हो गया। तो हम लोगों की कंप्लेन से वो पुलिस वाला सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने के बाद जो है इन्होंने बस्ती के लोगों ने खुद ही जो है, जो वेस्ट स्पीकिंग का काम करते थे, उन्होंने अपने आप मीटिंग बुलाई जो है, और उस मीटिंग में उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए जो है। और फिर वहीं से बातचीत शुरू हुई। तो हम लोगों ने सबसे पहला संगठन जो वो शुरू किया था, वो बवाना कबाड़ी संगठन करके जो है, बवाना का एक लोकल संगठन शुरू किया था। तो जैसे बहुत सारे इलाकों में ये पता चला कि हम लोग यूनियन का एक कार्ड बना रहे हैं, हम लोग ये कार्ड बनाते थे। उस समय भी हम लोगों ने कार्ड की कीमत 50 रुपए रखी थी और आज भी इसकी जो है 50 रुपए ही है। तो उन्होंने क्या किया कि शाहबाद डेयरी और रिठाला के बहुत सारे लोग, ये सारे लोग आपस में जानते थे। तो उन्होंने कहा कि तो उसमें से एक हम लोगों का बहुत पुराना साथी है, तो वो नेपाल का है, वो कार्ड बनवा के ले गया। उसको कहीं पुलिस ने रोका होगा तो उसने कार्ड दिखाया, तो पुलिस वालों ने उसको जाने दिया। तो उसने क्या किया कि और लोगों को प्रचार किया कि आप आइए हमारे इलाके में कार्ड बनवाने। तो हम लोग शाहबाद डेयरी रिठाला इन इलाकों में गए और मीटिंग करते थे। मीटिंग करने से पहले बताते थे कि क्या क्या करना है, फिर उसके बाद जो है हम लोग कार्ड बनाते थे। तो इसी तरह से पूरा ये अभियान शुरू किया। लेकिन इसको 2007 में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे वो नहीं 1997 2007 में नहीं, हाँ 2007 में हम लोगों ने इसको बड़े पैमाने पे किया इस काम को, क्योंकि जब पूरा निजीकरण अपने एकदम चरम सीमा पे था तो हमने बड़ा कैंपेन लिया पूरा। हमने कहा कि इसको बड़ा कैंपेन लेते हैं, और बड़ा कैंपेन लेने के बाद जो है हम लोगों ने, तब हम अपने साथियों को बोलते थे कि यार ये निजीकरण हो रहा है। उनको समझ में नहीं आता, बोलता था साहब जी क्या करेंगे, ये तो पैसे ही आता है, कंपनी वाला आता है, कोई आता है, तो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब एकदम जो है ये नौबत आ गई कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, तब वो लोग संगठित हुए। और वो पहली बार हम लोगों ने 2009 में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था जो एमसीडी कमिश्नर के ऑफिस पे। तब एक ही एमसीडी होती थी सिविल लाइन पे, जिसमें कि करीब 4 से 5 हजार लोग एक वेस्ट स्पीकर जो है इकट्ठा हुए थे। तब जाके जो है एक मतलब तब हम लोगों को संगठन को भी पहचान जो है एक तरह से कहा जाए तो 2009 में जो है इस रूप में जो है मिली। Any other questions? वाला सवाल जैसे कॉर्पोरेटिव के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे केपीटी के जो काफी सक्सेसफुल रहा है इस वर्ष। इस वक्त की कोऑपरेटिव तो सक्सेसफुल रही है। देखिए इस वक्त हम लोग उनके मेंबर भी हैं, क्योंकि बिस्कुट खाइए, इसमें कुछ नहीं है, बिस्कुट नहीं खाना, सब हम बोल सकते हैं। वो एक्चुअली में देखिए एक अलायंस है, अलायंस फॉर इंडियन वेस्ट स्पीकर्स, ठीक है। वो पूरे देश में जितने लोग वेस्ट स्पीकर्स के साथ काम करने वाले संगठन और यूनियन एनजीओ, वो सारे लोग उस अलायंस का हिस्सा हैं। और सेक्रेटरीट जो है उन्हीं के पास है, बाबा अड़ाव के ग्रुप के पास ही सेक्रेटरीट है। तो उसमें काम उनका ठीक है, मेरा उससे
कोई आपत्ति नहीं है और ना ही कोई वो है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा परिस्थितियां दूसरी तरह की हैं, ठीक है। वहां पे क्या है कि लोकल मराठी लोग जो है वो वेस्ट स्पीकिंग का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपको संगठन बनाने की भी, जो हम लोग जिस प्रक्रिया में जो है 10 साल लग गए हम जो है संगठन बनाने में, और आज इस स्थिति में हम खड़े हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास संगठन है, इतने लोगों का संगठन है। वो स्थिति ये है कि यहाँ पे जो लोगों का लोग जो है ना, वो अलग अलग स्टेट और अलग अलग भाषा और इस तरह के लोग हैं जिनको संगठित करना मुश्किल है। कोऑपरेटिव में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां पे वो लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो देखिए उनके एक एस्पेक्ट से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने भी, जैसे आप सेवा के बारे में जानती हैं। हाँ, तो वो सेवा, देखिए सेवा को पहले अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, वो पूरा वेस्ट स्पीकर्स को कॉन्ट्रैक्ट था कि आप सब काम करवाइए, हम आपके वेस्ट स्पीकर्स को कुछ पे करेंगे। क्या हुआ कि जब निजीकरण की हवा चली तो वहां एक A to Z कंपनी नाम की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली कंपनी अगर आई तो वो A to Z आई। A to Z ने क्या किया कि वहां पे सरकार के साथ उनका डील हो गया, और डील होने के बाद वहां पे उसने जो है, सरकार ने कह दिया कि A to Z को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। सेवा ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें दीजिए, हमारे वर्कर्स को दीजिए। हम भी उसके फेवर में थे, हम लोगों ने सेवा के सपोर्ट में चिट्ठियां लिखी, पूरे देश के संगठनों ने चिट्ठियां लिखी कि ये भाई वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट है, वर्कर को मिलना चाहिए। लेकिन सेवा ने गलती की कि उन्होंने दूसरे जो संगठन थे उनको भी नहीं बताया, और उन्होंने क्या किया कि उनकी कमिश्नर से बात हो गई कि आप भी एक कंपनी बना लो और आप भी बीडिंग करो, जैसे A to Z कर रहा है। तो जब आप इस फॉर्म पे जब आप चले जाते हैं कि आप भी एक कंपनी बना लो और आप भी बीडिंग करो जैसे दूसरे बीडिंग कर रहे हैं, तो जो आपकी पहली आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और उन्होंने वो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। उसी तरह से स्वच्छ में सिर्फ उन्होंने पूरी तरह से उस तरह का तरीका नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अभी जो उनको पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो अभी कैंसिल हो गया, इन्होंने पूरा उसकी बहुत, मतलब लोगों ने बहुत बुराई की है, बहुत वो किया, आलोचना की है स्वच्छ की, जिसके चलते उन्होंने अभी म्यूनिसिपैलिटी से वापस कर दिया, कि बोला कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। उन्होंने भी पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। दूसरा जो कोऑपरेटिव करते हैं, जो वो पूरी तरह से महिलाओं की कोऑपरेटिव, वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उस तरह का एक्सपेरिमेंट हम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी अपनी भी क्षमताएं हैं। हम कह रहे हैं कि सब कुछ हम ही कर लेंगे, वो हम नहीं कर सकते। हमारी अपनी क्षमता और अपनी क्वालिटी है, और आपको ऐसे करने, अगर भाई कोई अगर करने के लिए ये डिपार्टमेंट तैयार हो, आप लोग तैयार हो कोऑपरेटिव बनाने के लिए, तो मैं महिलाओं के साथ मीटिंग कर दूंगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए कोऑपरेटिव बनाने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी मदद करूंगा। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट है जो कोऑपरेटिव वाला, वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो जब मैंने पूरा 3 दिन उस एक्सपेरिमेंट को देखा था, उसमें सारी महिलाओं को, जो लोग कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, उनको वो लोग सारे लोगों को बराबर हिस्सा देते हैं जो प्रॉफिट होता है। इससे जो है वहाँ की बहुत सारी महिलाएं और बहुत लोगों का जो है, एक तरह से कहा जाए इकोनॉमिक रूप से भी बहुत डेवलप, उनके ग्रुप में जुड़ने वाले महिलाओं का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अगर ऐसा अगर हिंदुस्तान में अगर कोई काम देखा जाएगा तो उस ग्रुप का जो है वो हुआ है, अच्छा काम है। उस तरह का एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सीमा ये है कि हमारे पास उस तरह के रिसोर्स नहीं है, उस तरह के लोग नहीं है, और उस तरह की टीम नहीं है अभी करने के लिए। अगर उस तरह की टीम हो, रिसोर्स हो, तो जरूर उस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे। I think we will have to close this very lively discussion. I can understand that there can be lots of other questions, but I think आप राजी होंगे कि डिस्कशन अगर रूम के बाहर भी चलता रहे तो thank you all for coming, and please come to see the photo exhibition on the West Speakers, curated by Kaushiki Sharma from Aman Trust, which this is being held in the gallery space of the School of Arts and Aesthetics. The exhibition is on until 26th of April. So, please come. Thank you.
request everybody to keep their cups outside. Cups थोड़ा बाहर रखेंगे. Yes, I know. ये आता है? नहीं. ये किसका है?